Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. In the last lecture, that was mere of central tendency for ungrouped data, in which we have discussed about the mean, the average value, the expected value for ungrouped data. And then we have already discussed something about the median. Median is nothing but that divides the data into two different parts, means half on one side, half on other side. And then we have mode. Sometime it is called modal value, and mode is nothing but the number which occurs most of the time in the data. The number with a higher frequency in the data is called mode. Mean is very much simple. We have just simple formula to find the mean of the data. We just have to sum all the values and divide by the total values, and that is basically mean. Just like a simple formula we have in ungrouped data, like over summation of x over n, and where this x is basically, I'm just going to review the last lecture that we already have before proceeding to another lecture. So x basically sum of all the points, whatever the points you have, whatever the data points you have in the data, and n is the total number of the data, means counting the number of elements, how many elements are there in the data. This is basically your mean. And for median, we have two different concepts for mean. One is for even, one is for odd. If the data points are odd, then we just have to find the middle value. For example, if we have total number of elements are 7, our total number of observations are 7, we just have to arrange the data in ascending or descending order, and then we have to select the middle one. For example, we have total numbers 1, 2, 3 on one side and 3 on other side. The fourth position is basically your median. That divides the data in two parts. After that, there is a mode, and mode is nothing but the number that occurs most in the frequency data, that repeats itself in the data. So this is basically your mode. And then we have discussed about the relation among the mean, median and mode. These three things we have already discussed. In today's class, we are going to discuss the same concepts, mean, median and mode, but for grouped data today. तो लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन होगी यही चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अब ग्रुप डेटा में हो जाएंगी. और ग्रुप डेटा में आपको पता है कि ग्रुप डेटा में आपके पास क्या होंगी, क्लासेस होंगे और फ्रीक्वेंसी. बाकी तो सारा सिस्टम सेम होता है, लेकिन ग्रुप डेटा में आपके पास अब क्लासेस या इंटरवल होंगे. तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा टोटली होगा ग्रुप डेटा पे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या है. लास्ट लेक्चर में ये वाला फार्मूला आप देख चुके हैं. ये मीन हम लोग कर भी चुके हैं. एग्जांपल हम लोगों ने किया था, एक एग्जांपल आप लोगों ने किया था, एक मैंने किया था. इसी तरह से हम लोगों ने मीडियन को भी डिस्कस किया था, आउटलायर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो. और एक क्वेश्चन था, एक 1 मार्क का, 1 पॉइंट का आप लोगों के लिए, जो आप लोगों में से 3 स्टूडेंट्स को 1 पॉइंट जो था वो मैंने दिया था, जो टॉप फर्स्ट 3 थे. और इसके अलावा हम लोगों ने मीडियन को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में. मोड को हम लोगों ने पढ़ा था. और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्टार्ट होता है यहाँ से, द रिलेशन अमंग द मीन, मीडियन एंड मोड. अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ जो है शेप्स देखे थे, शेप्स डिस्ट्रीब्यूशन के शेप्स देखे थे, जिनमें आप लोगों ने एक सिमेट्रिक शेप पढ़ा था, एक राइट स्क्यूड पढ़ा था, एक लेफ्ट स्क्यूड पढ़ा था. 3 शेप्स मैंने आपको 4 पढ़ाए थे. एक आपको मैंने पढ़ाया था रेक्टेंगुलर शेप या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कहते थे. 4 तरह की तस्वीरें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सिमेट्रिक क्या होता है. ऐसा शेप होता है जो मीन पॉइंट से दोनों साइड पे सेम होता है. इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप लोग अपने नाक पे अपनी फिंगर रखेंगे और शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखेंगे, तो आपके फेस की दोनों साइडें जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका सिमेट्रिक का. या अगर आप लोगों के पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, उसकी आप चाबी देखें, उस चाबी को सेंटर आप सामने अपने रख के उस सेंटर में से उसके लाइन होती है, उसकी दोनों साइडों पे जो आप देखेंगे चाबी, तो दोनों साइडों पे सेम होगी.
ये भी एक आपकी सिमेट्रिक का एग्जांपल है। तो बेसिकली सिमेट्रिक हिस्टोग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने स्क्यूड लेफ्ट और स्क्यूड राइट डिस्कस किया था, और हम लोगों ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। तो वहां पे हम लोगों ने सिर्फ ग्राफिकली देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा उन्हीं का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरह से, वो जो शेप आप लोगों ने उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखे थे, वो बने किस तरह से हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज ये डिस्कस करने के बाद बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। फॉर अ सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, अगर कोई भी हिस्टोग्राम सिमेट्रिक होगा, आप अभी आपको अंदाजा है कि आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा हिस्टोग्राम सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यूड है, कौन सा किस तरफ स्क्यूड हो रहा है, और कौन सा आपका जो है वो यूनिफॉर्म है। यानी कि इतना अंदाजा अब आप लोगों को हो गया होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में शायद, चैप्टर नंबर 2 में शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन पीक, यानी अगर आपके पास कोई अगर आप लोगों के पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की हो जाए जिसमें एक पीक हो, यानी कि एक ही पीक हो, एक से ज्यादा पीक भी हो सकती है, मतलब पीक से मुराद ये है कि उसकी जो ऊंचाई है वो एक है। आगे उसकी फिगर भी है, वो देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड आपस में सेम हो जाएं, दे लाई एट अ सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली फिगर देख लें। अच्छा, ये चीजें अब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इनकी थ्योरेटिकल, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी जिस वक्त हम प्रोबेबिलिटी में जाएंगे या थर्ड चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो इनके प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल भी आप लोगों को मैं दूंगा कि बेसिकली इन चीजों का मतलब क्या है, ये ग्राफ का मतलब क्या है। ये आगे जब हम तीसरे चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आज से 2 या 3 लेक्चर के बाद, तो आप लोगों को रियल टाइम पे ये पता चलेगा कि बेसिकली हम लोग ये शेप्स पढ़ क्यों रहे हैं, इनका मतलब क्या है। तो शायद आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये आपका इस तीसरे चैप्टर में एंड द लास्ट, आई होप कि आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे इस कोर्स में बढ़ रहे हैं। तो अब आप याद कर लें, आपने सिर्फ इस जगह पे आपने इतना याद करना है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक तब होती है जब आपके पास क्या हो जाए, उस डेटा पॉइंट, जो भी डेटा पॉइंट है उनकी मीन, मीडियन और मोड, अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आप उस डेटा पॉइंट की मीडियन, मीन और मोड अगर आपस में बराबर आ जाते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक होगा। ये अंडरस्टूड है। चाहे आप एग्जांपल किसी बुक से या इंटरनेट पे आप लोग लिख के देख लें, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी डेटा पॉइंट्स लेके आप उसका ग्राफ बनाएंगे खुद से, क्योंकि अब आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है। ये बेसिकली हिस्टोग्राम बना हुआ है, आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है। अगर आप किसी भी डेटा का हिस्टोग्राम बनाएंगे जिसमें मीन भी सेम हो, मीडियन भी सेम हो, मॉड भी सेम हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा बिल्कुल इस तरह से बनेगा जिसे हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या कभी कभी इसको बेल शेप भी कहते हैं। बेल शेप जो घंटी होती है, इसको कभी कभी इस शेप को हम लोग बेल शेप भी कहते हैं। तो आप लोगों ने सीख लिया कि जो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब बनता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त बनता है जब किसी भी डेटा की मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजें अगर आपस में बराबर आ जाए, चाहे वो कोई भी डेटा पॉइंट हो, चाहे वो कितने भी डेटा पॉइंट हो, अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो उस डेटा का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। पॉइंट नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, फॉर अ हिस्टोग्राम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्क्यूड टू राइट, कोई भी हिस्टोग्राम होगा वो राइट पे स्क्यूड करेगा। द वैल्यू ऑफ द मीन इज द लार्जेस्ट, अगर मीन की वैल्यू लार्जेस्ट हो, अगर मीन की वैल्यू आपकी क्या हो, लार्जेस्ट हो, और दैट ऑफ द मोड इज स्मॉलेस्ट, मीन की वैल्यू लार्जेस्ट हो, मोड की वैल्यू जो हो वो स्मॉल हो, अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें, मीन इज द लार्जेस्ट, यानी ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स जिनमें से मीन आपकी लार्जेस्ट हो, मीन यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू मीन की हो, एंड द मोड इज द स्मॉलेस्ट, और मोड सबसे छोटा हो, यानी कि जो मोड हो वो सबसे छोटा हो, एंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन लाई बिटवीन द टू,
और मीडियन यानी कि इस तरह से हो, यानी कि आपके पास क्या हो, मीन लेस देन हो किससे ना, ग्रेटर देन हो, सॉरी I am doing wrong here. Basically I am going to erase it. This is erased and here we go with a pen. This is greater than किसके बराबर हो, देखिए यहाँ पे जो लिखा है मीन इज द लार्जेस्ट दैट द मोड इज स्मॉलेस्ट, और मीडियन जो होगा वो इसके दरमियान होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मीडियन, और मीडियन ग्रेटर देन होगा किससे, आपके मोड से। और कभी कभी बुक्स इसको उल्टा भी लिख देती हैं, डोंट वरी, मोड लेस देन मीडियन एंड मीडियन लेस देन मीन से, क्योंकि इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी डेटा में आप यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी किसकी होगी, मोड की होगी, फिर आपकी मीडियन होगी, और जो ये है मीन है, सॉरी ये इसमें शायद, सॉरी एक मिनट, मीन इज द लार्जेस्ट दैट द मोड इज द स्मॉलेस्ट। हाँ ठीक है। तो अगर इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है तो आप देखें ये जो है आपकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यू टू राइट है। ये देखें ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यू टू राइट हो गई है। और रिलेशन बिटवीन द मीडियन एंड मोड, आखिरी रिलेशन है थर्ड पे, इसमें क्या होगा, इफ अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर स्क्यू टू लेफ्ट, द वैल्यू ऑफ द मीन इज द स्मॉलेस्ट, मीन स्मॉलेस्ट होगी एंड द मोड इज द लार्जेस्ट विद द वैल्यू of the median lying between these two. In this case, the outlier in the left tail pull the mean to the left. ये देखें इसमें आउटलायर का जो है वो इशू है। तो ये देखें इसमें आपका क्या है, जो मीन है वो लेस देन है मीडियन से, और मीडियन जो है वो लेस देन है मोड से। तो ये इस तरह से अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस बनेगी, वो आपने तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस देखी, हाँ आवाज अब आ रही है। तो देखें इसमें आपने तीन चीजें डिस्कस की हैं, एक में अगर आपका मीन बराबर है मीडियन के और मोड के तो ये सिमेट्रिक, और अगर आपकी जो है वो लेफ्ट स्क्यूड होगा तो ये उल्टा बेसिकली हो जाता है। अगर लेफ्ट स्क्यूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी हिस्टोग्राम फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू द राइट सी फिगर, द वैल्यू ऑफ द मीन इज द लार्जेस्ट, मीन की वैल्यू सबसे बड़ी हो, द मोड इज द स्मॉलेस्ट, मोड उससे छोटा हो, एंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज लाइज बिटवीन दीज टू, और मीडियन उसके बीच में। नोट दैट द मोड ऑलवेज ऑकर एट द पीक पॉइंट, ये याद रख लें, जो मोड होगा वो हमेशा बेसिकली टेक्निकली जब आप इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो सबसे जो मीन इज द लास्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी जो आएगी वो मीन की आएगी, उसके बाद जो आपका आएगा वो मीडियन आएगा, और उसके बाद मोड आएगा। लेकिन अगर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा है, मोड पहले है, मीडियन बाद में है, मीन बाद में है। बेसिकली ये उल्टा है, क्योंकि जो मोड है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नोट दैट द मोड ऑलवेज ऑकर एट द पीक पॉइंट, क्योंकि मोड का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा हो रही है, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रही है, तो वो हमेशा पीक पॉइंट पे होती है। The value of the mean is the largest in this case because it is sensitive to outlier, और इस केस में मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जब प्रैक्टिकल आप एग्जांपल करेंगे तो आपको ये बिल्कुल इसी तरह से वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो फिर यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा, मोड पहले आ जाएगा, मीन बाद में, मीडियन बाद में, मीन लास्ट में। लेकिन टेक्निकली सबसे बड़ा मीडियन होगा, मीन होगा, मीडियन इन दोनों के दरमियान में होगा, और मोड जो होगा वो इससे मीन से छोटा होगा। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एग्जाम्पल शायद आगे होंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अबाउट ग्राफिकली। अब जो आगे है मेयर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ फॉर अनग्रुप डेटा, यानी ये जो चीजें हैं, अब ये शायद जो भी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है
वो शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, क्योंकि मीन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, मीडियन हम लोग पढ़ते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग और ये सारी चीजें हम काफी हद तक किसी हद तक पढ़ के आते हैं। यानी कि मीन भी हम लोगों ने सुना होगा, तकरीबन स्टूडेंट्स को पता होगा कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियान कैसे फाइंड करते हैं। काफियों ने सुना होगा, जिन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक या खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक में से एंट्री टेस्ट की तैयारी की होगी तो उन्होंने वो भी सुना होगा। लेकिन जो स्लाइड आपके सामने अभी खुली हुई है, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है मेयर ऑफ डिस्पर्शन फॉर अनग्रुप डेटा, तो ये चीजें आपने पहले नहीं सुनी। अब सबसे पहली बात है रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों को समझाने का। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये मेरे जहन में ये बात आ रही है कि हम लोग रेंज को क्यों पढ़ें या वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को क्यों पढ़ें। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आप दो कंप्यूटर चला रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के आप प्रोग्रामर बन गए हैं फॉर एग्जांपल। अब सोच लें कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके पास दो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरिएंस और रेंज, ये चीजें हम लोग क्यों यूज करने लगे हैं, यानी कि हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम ये चीजें अब यूज करेंगे और इनका मतलब क्या है। अब थोड़ा सा गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे साथ इसी तरह से जो है वो मूव आउट करता रहेगा, हमारे साथ चलता रहेगा आगे थ्रू आउट द लेक्चर्स। तो अब आपने देखना ये है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जी ओके। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। अब फॉर एग्जांपल आप दो कंप्यूटर्स को चला रहे हैं, दो कंप्यूटर्स, आपने एक महीना दो कंप्यूटर चलाए हैं। अब एक महीने के बाद आपको ये फैसला करना है कि दोनों कंप्यूटर्स में से बेहतर कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि ज्यादा बेहतर आउटपुट क्या किस कंप्यूटर की थी। फॉर एग्जांपल आपने कोई उसके ऊपर कोई काम किया है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी है इस तरह से। तो आपने क्या किया कि उसकी एवरेज परफॉर्मेंस फाइंड की कि मैंने दोनों को इतने घंटे चलाया है, इसने इतना आउटपुट दिया, इसने इतना आउटपुट दिया, आपने एवरेज फाइंड की। एक तरीका था आप उसकी मीन फाइंड कर लें, या चलें इसको और आसान कर देते हैं, कंप्यूटर नहीं लेते, चलें दो स्टूडेंट ले लेते हैं। आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, आपने ये बताना है कि दोनों स्टूडेंट्स में से बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट हैं, एक समझ लें आईटी का सीएस का स्टूडेंट है, दूसरा समझ लें मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। अब आपने दो स्टूडेंट्स में से मुझे बताना है कि दोनों स्टूडेंट्स में से बेहतरीन स्टूडेंट कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, जब जुबानी कलामी हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हमें पता चल जाता है, किसी ने बता दिया कि इसकी परसेंटेज इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है, तो हमने फैसला कर लिया कि ये बेहतर है। वो हमारे अपने डिसीजन होते हैं, पर्सनल डिसीजंस, जो हम एक्सपीरियंस के बेस पे लेते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम कभी भी एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन नहीं लेते, हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, आप उन दोनों का डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देंगे। डेटा कलेक्शन में आप उनके हर सेमेस्टर की मार्क्स वगैरह, हर चीज, टेस्टों, असाइनमेंट, जो भी उन्होंने पोजीशन ली है वो सारी इकट्ठी कर लेंगे। और ये बताने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपने क्या करना है, उन दोनों की एवरेज फाइंड कर लें, मीन फाइंड कर लें दोनों स्टूडेंट्स की। अगर आपने मीन फाइंड कर ली, जिसकी मीन ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो स्टूडेंट क्या होगा, टेक्स्ट में बताएं, जिस स्टूडेंट की मीन ज्यादा होगी वो क्या होगा, बेहतर होगा या कम होगा। टेक्स्ट में जरा मुझे बताइए आप क्या समझ रहे हैं।
अगर मैं दो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, नवीद कह रहा है कि जिसकी एवरेज ज्यादा होगी वो बेहतर होगा, अंडरस्टूड है, ठीक हो गया, वो बेहतर होगा। फहीम भी कह रहे हैं बेहतर होगा, विश्ना कह रहा है बेस्ट होगा, और पिरे कह रही है बेटर होगा, 85 कह रहे हैं बेटर होगा, गुलजार कह रहा है बेस्ट होगा, 51 बेस्ट, असद ने कहा बेहतर होगा, अवेश ने कहा परफेक्ट होगा। चलो, तो मतलब जिसकी मीन ज्यादा हुई वो स्टूडेंट बेहतर है। चलें, अब मैं ये कहता हूँ, अब मजे की बात ये है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मजे की बात ये है कि दोनों की मीन सेम आ गई। अब क्या करोगे? आपने क्या करना था, दोनों में से बेस्ट बताना था। फॉर एग्जाम्पल दोनों की मीन सेम आ गई, अब क्या करोगे? एनी आइडिया? वेटिंग इन टेक्स्ट, एनी आइडिया इन योर माइंड? नवीद कह रहे हैं कि मीडियन कर लें। चलें ठीक है, इट्स ओके, हम लोग मीडियन कर लेते हैं कि 50-50 डेटा हो गया, जिसका 50% डेटा दूसरे से ज्यादा होगा। मिसाल शुरू वाले 3 सेमेस्टर के दोनों के रिजल्ट सेम आ गए, आधे आधे कर दिए, जिसके आखिरी सेमेस्टर में रिजल्ट बेहतर होंगे हम उसको कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो आपका मीडियन है वो क्या करेगा, डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। चलें जी, मीडियन हम लोगों ने कर लिया। मीडियन आपको सिर्फ डेटा की लुक दे देगा कि आधा आधा कर देगा, इसके 2 सेमेस्टर में इतने मार्क्स है, इसके 2 सेमेस्टर्स में इतने मार्क्स है। हमने कंडीशन रख दी कि जिसके सेकंड आखिरी 2 सेमेस्टर्स में मार्क्स ज्यादा बेहतर होंगे उसको हम ज्यादा बेहतर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि मीन दोनों की सेम आ चुकी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है जी, मीन कर लिया। अब मजे की बात यह है कि हुआ ये कि मीडियन भी सेम आ गया। अब मीडियन भी सेम आ गया, और ऐसा हो जाता है बहुत से डेटा पॉइंट्स में, मीडियन भी सेम आ गया। अब क्या करोगे? अब मीन भी सेम, मीडियन भी सेम, अब क्या करोगे? अब मोड चेक कर लेंगे। ठीक है, नवीद कहते हैं अब मोड कर लेंगे। अब मोड क्या देगा हमें? मोड देगा कि इसने सबसे ज्यादा स्कोर कितने कोर्सेज में ज्यादा स्कोर बनाए हैं। फॉर एग्जांपल दोनों का रिजल्ट टाई हो गया, मीन भी टाई हो गया, मीडियन भी टाई हो गया। अब मोड हमें ये बताएगा कि इसने हाईएस्ट स्कोर कितनी बार लिए हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के जो मीडियन मोड आए उसके 98 4 बार आए, दूसरे के 98 3 बार आए, तो डेफिनेटली जिसका मोड ज्यादा होगा उसने बेहतर परफॉर्मेंस होगी, हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि वो बेहतर है। क्या ख्याल है? क्योंकि मोड आपको क्या देगा, जो आपकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो उसकी रिपीटेशन बताएगा। तो एक ही 98 है, एक ही 97 है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, 98 या 97? क्योंकि एक ही मोड जो है वो 98 है, यानी कि 98 उसने ज्यादा बार रिपीट किया है, और एक ने 97% दोबारा रिपीट किया है। अब मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, किसकी तरफ जाएंगे? नाइनटी एट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसका मोड ज्यादा है। मोड आपको वैसे ही बताता है कि इसने मैक्सिमम स्कोर जो किसने किए हैं, ये इसी तरह से है। चलो, अब लेकिन मेरे पास एक और मसला है, मैं कहता हूं उनका मोड भी सेम है। अब क्या होगा? अब मीन भी सेम हो गई, मीडियन भी सेम हो गया, मोड भी सेम हो गया, तीनों डेटा पॉइंट्स हमारे सेम हो गए। यानी कि अब हमारे पास मसला हो गया कि अब हम एनालाइज कैसे करें कि कौन सा बेहतर है। समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा थोड़ी सी, लेकिन पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास माइक हैं वो अपना जो हाथ ऊपर करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं उनसे अगर बात करूं तो डायरेक्ट उनका नाम लूं। थोड़ा सा रेज हैंड कीजिएगा जिनके पास माइक्स चल रहे हैं। ठीक है, एक ही स्टूडेंट है जिसके पास पूरी क्लास में माइक चल रहा है। ठीक है नवीदुल्लाह, आपकी तरफ मैं आता हूँ, आप मुझे गौर से सुनिएगा। बस एक ही है और किसी के पास माइक नहीं चल रहा है। माइक अपने सही करवाएं, माइक सही करवाएं। विष्णालाल के पास भी चल रहा है, ठीक है। माइक्स अपने सेट करवा लें, ताकि अगर आपने बेटर चीजों को समझना है तो आप परेशान ना हो बात करने से, या इसमें घबराएं नहीं। मेरा मतलब हरगिज आपको मतलब ये नहीं है, मैं आपकी भलाई के लिए आप लोगों के साथ बात करता हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा आगे बढ़े, चीजों में इनरोल हो जाएं। ये आपकी भलाई के लिए ही करता हूँ जो कुछ भी कर रहा हूँ। चले ठीक हो गया, 3 स्टूडेंट्स हैं, काफी हैं, 4 हो गए, 5 हो गए। चले, अब मैं जो आपके साथ जो मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो गौर से सुनिएगा, उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल पे आपसे डिस्कस करूंगा।
चले अब हमने स्टूडेंट्स को एनालाइज किया, आपके पास मीन भी सेम आ गई, मीडियन भी सेम आ गई, मोड भी सेम आ गया। यानी जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, हम दो स्टूडेंट्स को फाइंड करना चाह रहे थे कि बेहतर कौन सा है, तो आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि उन तीनों में जो रिजल्ट है वो सेम है। अभी तक हम डिसीजन नहीं ले पाए। ओके हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, वो एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा वन बाय वन। ठीक है, अब पुराने वाला एग्जाम्पल खत्म, अब एक नया एग्जाम्पल है क्योंकि हमें पिछले एग्जाम्पल में हमें कुछ नहीं मिला, मीन भी सेम, मीडियन भी सेम, मोड भी सेम, तीनों सेम आ गए, वो सारा कुछ फेल हो गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये रेंज क्या है और ये वेरिएंस क्या है और ये हम क्यों यूज करेंगे। आप खुद ही फैसला करेंगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप मुझे खुद ही कहेंगे हाँ ये कर लेंगे, सही है। चलें जी, अब आपके पास आ गई क्रिकेट के दो प्लेयर हैं। क्रिकेट के कितने प्लेयर हैं आपके पास? दो प्लेयर आपके पास क्रिकेट के हैं। अब आपने क्या करना है, दो प्लेयर्स में से बेस्ट दो प्लेयर्स को चूज करना है। खुशकिस्मती थी उनकी या बदकिस्मती थी उनकी कि उनके मीन वैल्यू भी सेम थे, मीडियन भी सेम थे, मोड भी सेम थे। यानी कि जो दोनों प्लेयर्स हैं उनके मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, मोड भी सेम है। या ये वही स्टूडेंट वाला एग्जांपल ले लें, उनके मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, मोड भी सेम है, सब कुछ सेम आ गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दो प्लेयर्स आप किसको चूज करेंगे। एक प्लेयर की कहानी सुनाता हूं पहले, फिर दूसरे की कहानी सुनाता हूं। एक प्लेयर है जो कि क्रिकेट खेलता है, पहले 5 मैच खेलते हैं दोनों प्लेयर्स। अब दोनों प्लेयर्स कितने मैच खेल रहे हैं? 5। पहला प्लेयर आता है, एक मैच में 40 रन बनाता है, दूसरे में 45 बनाता है, फिर 40 बनाता है, फिर 30 बनाता है, फिर 40 बनाता है। ठीक है, यानी 40, 45, 40, 30, 40, एक प्लेयर ने ये बनाए। लेकिन ये मेरी बात याद रख लें कि एंड में उनके मीन और मीडियन और मोड सेम है। शायद मेरे पास डेटा पॉइंट मैं रैंडमली बता रहा हूँ तो गलत हो जाएंगे, लेकिन आप टेक्निकली ये समझिएगा कि उनके मीन, मीडियन, मोड सब सेम है। और एक प्लेयर की आपको परफॉर्मेंस मैंने दे दी, 40 बनाए, 45 बनाए, 30 बनाए, 40 बनाए, 45 बनाए। ठीक हो गया। अब दूसरा प्लेयर आ गया, पहले मैच में 0, दूसरे में 0, एक में 100, एक में 30, एक में फिर 0, या एक में चलें 40। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग कौन सा प्लेयर जो है इनमें से ज्यादा बेहतर होगा। वो प्लेयर जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है कुछ प्रॉपर एवरेज के साथ, या वो प्लेयर जो 2 मैच में 0 पे आउट हुआ लेकिन 2 मैच में उसने स्कोर अच्छा किया। इन द एंड उनके मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, मोड भी सेम है। तो सबसे पहले मैं नवीदुल्लाह के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। नवीदुल्लाह, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है जो नंबर 1 प्लेयर है ना, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वो बेहतर है। अच्छा, अगर टेक्निकल आप सोचो, ये तो आपने फिजिकली देखे बिना, मैंने यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स हमने यूज नहीं की, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने कहा कि पहला ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा कि पहला प्लेयर ठीक है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके दिल में ऐसा क्या आया कि आपने पहले प्लेयर को चूज किया। क्योंकि सर वो कांस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, हर मैच में कुछ ना कुछ रन्स बना रहा है, इसीलिए सर। रन बना रहा है। विष्णु लाल, आप क्या कहते हैं? जी सर, नवीद भाई सही कह रहे हैं, जो स्कोर बना रहा है वो सही रहेगा। सही रहेगा। 85 आपके जहन में क्या चल रहा है? यस 85। यस जवेरिया, आप क्या कहते हैं, कहना चाहेंगे इस पे? यस सर, नवीद ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो कम से कम अपना कुछ ना कुछ परफॉर्म तो कर रहा है ना, कंटिन्यूअसली सेम सा परफॉर्मेंस जा रहा है, किसी में बिल्कुल जीरो तो नहीं दे रहा वो। मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्लेयर ज्यादा बेहतर है जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है। जी 5-1, मैं आपसे भी यही बात सुनना चाह रहा हूँ, क्या आप इन चारों से एग्री करते हैं या आपके जहन में कुछ और आ रहा है? प्लीज 5-1। जी सर, सेम ये प्लेयर जो फर्स्ट है वो बेस्ट है, बेस्ट। क्योंकि सब इनमें हाँ हाँ, क्योंकि सर उसकी परफॉर्मेंस जो बेस्ट है। बेस्ट है। चलें, आप सबका आइडिया ठीक है। अब जरा मुझे गौर से दोबारा से सुने, फिर अगले क्वेश्चन के लिए वेट करें।
अब आप सबने कहा कि जो प्लेयर कम से कम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वो बेहतर है, क्योंकि उन तीनों की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन तीनों के मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, मोड भी सेम है। तो अब नेक्स्ट मेथड आता है, जब ये तीनों फेल हो जाते हैं तो हम बढ़ते हैं रेंज की तरफ। रेंज जो है वो बेसिकली आप लोग जो है मैक्सिमम जो स्कोर है, यानी कि जो मैक्सिमम आपका डेटा पॉइंट है जो सबसे बड़ा होगा, उसमें से आप लोग मिनिमम को माइनस कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है आपका चीजों को डिफरेंशिएट करना कि कौन सा बेहतर है, यानी कि जिसकी रेंज ज्यादा आएगी वो बेहतर होगा। एक बात, लेकिन मैं इस मेथड को नहीं मानता, ये मेथड सही नहीं है। इट्स नॉट अ बेटर मेथड। रेंज में आप क्या करते हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर माइनस कर देते हैं, लेकिन रेंज मेथड जो होता है वो एनालिसिस में ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि अगर आउटलायर है आपकी उसमें डेटा में, तो डेफिनेटली रेंज मेथड मजे से काम नहीं करेगा। अब आ जाए वेरिएंस। ठीक है, अब मैं आपको बेहतरीन एक पॉइंट बताने लगा हूं जो कि सबसे पावरफुल मेथड होता है स्टैटिस्टिक्स में, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने जिस तरह से कहा कि वो प्लेयर बेहतर है जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है। अब वेरिएंस हमें क्या देती है, वेरिएंस हमें वही डेटा पॉइंट्स देती है कि आपके जो स्कोर्स हैं उनमें से आपकी वैल्यूज माइनस करती जाती है, मीन वैल्यूज माइनस करती जा रही है। तो जिसकी वेरिएंस सबसे कम आएगी, वेरिएंस का मतलब होता है दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, क्योंकि जो पहला प्लेयर था उसने 40 स्कोर किया, 45 किया, फिर 40 किया, फिर 45, फिर 30, उसकी दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान उसका डिस्टेंस जो वेरिएंस था, यानी कि जो अगर मैं यहाँ पे डेटा पॉइंट स्पेस में लिखूं 40, 50, ये अगर आपको नजर आ रहे हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है डेटा पॉइंट के दरमियान, ये बेसिकली वेरिएंस है, स्पीड ऑफ डेटा। ये जितना कम होगा उतना प्लेयर बेहतर होगा स्टैटिस्टिकली। आपने वैसे ही कह दिया आपके एक्सपीरियंस से कि वो ए प्लेयर बेहतर है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स भी वही कहती है जो आपने कहा कि जितनी वेरिएंस कम होगी उतना प्लेयर बेहतर होगा। तो इसका मतलब है प्लेयर 1 की वेरिएंस कम है, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान जो उसका डिफरेंस है डेटा पॉइंट्स के दरमियान वो कम है, तो इसका मतलब ये हुआ वो प्लेयर भी बेटर होगा। ये हो गई वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज मीन बाय रेंज, व्हाट डज मीन बाय वेरिएंस। अब वेरिएंस और रेंज हम किस तरह से यूज करेंगे वो तो हम सीख लेते हैं, लेकिन वेरिएंस है क्या, दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है। जितना आपका वेरिएंस कम होगी उतना प्लेयर या जिस डेटा को आप एनालिसिस कर रहे हैं वो उतना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत दफा आप लोग जो है कुछ चीजें लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मैं आप किसी चीज की एग्जांपल दूं, आप इवन आपके घर में बहुत से बिजली के स्विचेस होते हैं और आप उनके ऊपर देखते हैं कि जी उनके ऊपर लिखा होता है इतने वोल्ट प्लस माइनस, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लिखा होता है। इवन आपके मोबाइल के चार्जर पे लिखा होगा 0.6 एम्पेयर प्लस माइनस इतने एम्पेयर, छोटा सा एक साइड में लिखा होता है प्लस माइनस इतना। वो प्लस माइनस क्या होता है, वो प्लस माइनस वेरिएंस होती है कि जो फिगर लिखा हुआ है उससे या तो एक बढ़ भी सकता है या एक कम भी हो सकता है, वो आपकी वेरिएंस होती है बेसिकली। लेकिन अब ये यूज कैसे होगी, इसको फाइंड कैसे करेंगे, वो तो हम लोग आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। आज आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा जरूर। और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो है वो माइनस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रेंज होगा। ये भी एक तरीका है आप दो चीजों को एनालिसिस करने का, लेकिन ये तरीका इतना पावरफुल या इतना बेहतर नहीं है। मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप रेंज ना फाइंड करें और आप जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चले जाएं। फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट्स है, इसमें आपने रेंज फाइंड करना है तो मैक्सिमम नंबर देखें। अगर आउटलायर है, ये देखें ये तीनों छोटे रिजल्ट्स हैं और एक आउटलायर आपके पास ये वाला है, तो ये रिजल्ट डेफिनेटली आपका रिजल्ट इतना मजे वाला नहीं आएगा। तो आपको ये मिली द टोटल एरियाज दिस 4 स्टेट आर स्प्रेड ओवर द रेंज, इतनी रेंज है। तो ये मेथड इतना बेहतर नहीं होता, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लें। ये देखें रेंज के एडवांटेज भी हैं। द रेंज लाइक द मीन हैज द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर। ये पॉइंट नोट कर लें, देखें ये वाला पॉइंट नोट कर लें कि मीन रेंज जो मेथड है वो इतना बेहतर नहीं है। अगर आपके डेटा पॉइंट्स में आउटलायर है तो रेंज आपका सही नहीं है, क्योंकि जब आपके टेस्ट होंगे, हो सकता है आपके जो एग्जाम जब होंगे
तो क्वेश्चंस इस तरह के बनेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल, वही बंदा सॉल्व कर पाएगा जो वीडियोस को देखेगा और लेक्चर्स को पढ़ेगा। तो इसलिए इन तरह के जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करते जाया करें। जो चीज़ें आपको कहता हूँ कि इसको नोट कर लें, आप डायरी बनाते जाएं अपनी, उसमें मेन चीज़ें जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं जो मैं बोल के आपको बताता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो नोट कर लिया करें। Consequently, the range is not a good measure of dispersion. रेंज भी एक डिस्पर्शन का मेयर है या स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इसमें आउटलायर में ये फेल हो जाता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेंज अच्छा नहीं है। अब मेरे ख्याल में आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के बहुत से सवाल जो हैं वो आ रहे हैं पैसेजेस में, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन फोरम की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से दोबारा से मुलाकात होगी जिसमें हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।